Hello everyone, I DL Saini with a new topic, relation and function of class 12. As you aware about this topic, relation and function, आपने इसे क्लास 11th में पहले से पढ़ रखा है. तो एलिमेंट्री पार्ट क्लास 11th में है और उसका नेक्स्ट पार्ट क्लास 12th में है. तो हम स्टार्ट करते हैं. इसी चैप्टर में आप मेनली ये 4 टॉपिक्स हैं इनके बारे में पढ़ेंगे. पहला है रिलेशन एंड फंक्शन, पहला रिलेशंस. तो सेकंड टॉपिक है फंक्शन, थर्ड वन कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एंड फोर्थ वन इनवर्स ऑफ ए फंक्शन. तो आज हम स्टार्ट करते हैं विद रिलेशंस. रिलेशन को समझने के लिए हम पहले डिफाइन करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट. सपोज A and B are two sets, then Cartesian product of these two sets is defined as A cross B, where elements of type x, y, x belongs to A and y belongs to B. अब ये कह सकते हैं कि set of all ordered pairs, the set of all ordered pairs is known as Cartesian product. For example, suppose A equals to 1, 2 and B equals to A, B, C. Then A cross B is equals to the set of 1A, 1B, 1C, 2A, 2B and 2C. It have 6 elements, 2 elements into 3 elements. The 2 into 3, 6 elements. It is known as Cartesian product. Now we define the relation. Suppose a relation defined from set A to set B such that R is subset or equal to A cross B. R is subset or equal to A cross B. That means how many subsets are there in A cross B? If A have m element and B have n elements, then how many elements are there in A cross B? In A cross B, m into n elements, mn elements. And how many subsets are there? 2 raised to power mn. क्लास 11 में पढ़ा आपने 2 raised to power mn. तो सपोज A में m एलिमेंट हैं, B में n एलिमेंट हैं, तो हम टोटल कितने डिफाइन कर सकते हैं इसमें? टोटल सबसेट्स और टोटल रिलेशंस इक्वल्स टू 2 raised to power mn equals to number of subsets. Now relation in 2 types you have studied, one in roster form and second one in set builder form. तो ये जो एग्जांपल है इस टाइप के सेट बिल्डर टाइप का. एग्जांपल 1, A equals to 1, 2 and B equals to 3, 4, 5. Then A cross B have 6 elements. Suppose R is defined as 1, 3 and 2, 4 only. It has 2 ordered pairs and which is subset of A cross B.
it is in roster form. Second one, example 2, letting a equals to, or you can take the same example, 1 2, b equals to 3 4 5, and R is defined as all x y where y equals to x plus 2 for all x belongs to A and y belongs to B. It is in सेट बिल्डर फॉर्म, और सेट बिल्डर फॉर्म को आप कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, रोस्टर फॉर्म में. यदि इसमें ये डेफिनेशन लेते हैं तो देखो किससे कनेक्टेड होगा. If we put up x equals to 1, then 1 plus 2 equals to 3. X equals to 1, then y equals to 3. If x equals to 2, then 2 plus 2, 4. So y equals to 4. 2 and 4. Next one, आपने पढ़ा पहले से ही डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ ए रिलेशन. पहले हम डिफाइन करते हैं डोमेन, तो यही सेम रिलेशन ले लेते हैं. डोमेन is the set of the first elements of the relation. The collection of first elements of the relation. In this topic, domain is 1 and 2, and the range is the collection or the set of the second elements of the relation. तो रेंज क्या होगा इसका, 3 and 4. और एक हो आता है कोडोमेन. कोडोमेन क्या होगा, द सेट B, टोटली सेट B इज द कोडोमेन ऑफ द रिलेशन 3 4 and 5. इसको आप वेन डायग्राम से ले सकते हैं. सपोज सेट A is set B and relation is R. ये 1 2 3 4 and 5. 1 related to 3 and 2 related to 4. तो ये आ जाएगा आपके पास रिलेशन रिप्रेजेंटेशन इन वेन डायग्राम फॉर्म. तो ये तो हो गया सिंपल डेफिनेशन ऑफ ए रिलेशन. जनरली जो हम डिफाइन करते हैं रिलेशन को, ये इसमें ले रखा है रिलेशन ऑन ए फर्स्ट सेट टू सेकंड सेट. जनरली हम लेते हैं रिलेशन ऑन ए सेट. तो इसका क्या मीनिंग है, रिलेशन ऑन ए सेट. सपोज हमने कहा रिलेशन आर ऑन ए सेट ए. It means are defined on A to A. ये आप जरूर ध्यान रखिए. Now, what is the Cartesian product? A cross A, and R is subset of, in this relation, R is subset or equals to A cross A. इसमें दोनों सेम हैं. फर्स्ट वन और दोनों सेट एक ही सेट के ऊपर डिफाइंड है. जैसे मान लो मैं ये कहूं कि R is defined on a set A equals to 1 2. इसका मीनिंग है R defined A to A, and suppose R equals to 1 1 2 2, इस तरह से डिफाइंड है. तो ये है सेम सेट के ऊपर R defined from A to A. Now we are going to express the type of relations. Here 3 type of relations are there. Number 1, empty relation. आपने सेट में ही पढ़ा है, एम्प्टी सेट या वॉइड सेटिंग सेम रिलेशन में होता है. एम्प्टी रिलेशन या फिर वॉइड रिलेशन. पहला लेते हैं वॉइड रिलेशन. टाइप्स ऑफ रिलेशंस.
नंबर वन, void relation. और इसी को क्या बोल सकते हैं हम? एम्प्टी रिलेशन. नाम से क्लियर है, ऐसा रिलेशन जिसमें कोई भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं हो, यानी कोई भी एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से कनेक्टेड नहीं हो. सपोज मैं ये कह रहा हूं, R is a set, R is a relation from set A to A, then if no element of set A is related to any element of A, then the relation is known as empty relation and represented by phi. Therefore, empty relation is R equals to phi, which is a subset of A cross A also. For example, इसका देखो कोई एग्जांपल लेते हैं. Suppose there is a set A equals to 3, 4, 5 and R is a relation defined as all of xy where y equals to x plus 6 is the definition of relation. अब देखिए आप इसमें A है elements 3, 4, 5 and a relation defined from A to A. If we take x equals to 3 x equals to 3 then y equals to 9. A में नहीं है तो 3 किसी के साथ कनेक्टेड नहीं है. नंबर 4 plus 6 equals to 10 10 भी इसमें नहीं है. ऐसे दिया भी 5 तो 5 plus 6 11 भी नहीं है. तो यहाँ जो रिलेशन लेंगे इक्वल्स टू क्या आएगा 5. तो ये है एम्प्टी रिलेशन, इसमें नो एलिमेंट ऑफ ए is connected to any element of A. Therefore, it is known as empty relation. Next one, the universe relation. If a relation R defined on a set A, it means A to A, such as R equals to x y, where modulus of x minus y is greater than or equal to 0 and A equals to 6, 7, 8, इस टाइप का कोई रिलेशन है. तो इसमें देखिए रिलेशन डिफाइंड ऑन सेट A to set A and it is defined as x minus y is greater than or equal to 0. Since the modulus of difference of any two elements of A always greater than or equals to 0. Therefore, it's equal to A cross B. R is equals to A cross B. A cross B में कितने एलिमेंट होंगे 3 into 3 9 और इसमें भी कितने आएंगे 3 into 3 9 एलिमेंट्स. तो ऐसे जो टाइप का रिलेशन है वो क्या होगा यूनिवर्स रिलेशन. दैट इज R is equals to A cross B. The next relation is a identity relation. और ये आइडेंटिटी रिलेशन है एनसीईआरटी बुक में हालांकि नहीं दे रखा है लेकिन फिर भी नॉलेज के लिए आपको पढ़ना चाहिए इसको. तो आइडेंटिटी रिलेशन हम डिफाइन कैसे करेंगे? If R is a relation defined from set A to set B, such as R equals to x
R equals to XX for all x belongs to A. Sorry, A to A. R equals to XX. Any element related to itself. It is known as identity relation. और इसमें देखिए आइडेंटिटी रिलेशन हम डिफाइन करेंगे. सेम एग्जांपल. इसी एग्जांपल में क्या आएगा? ये 6 7 8 और ये 6 7 एंड 8. इट मींस x इक्वल टू y. तो दोनों एलिमेंट इक्वल है. 6 रिलेटेड टू 6, 7 रिलेटेड टू 7 and 8 related to 8. Only related to within itself. R equals to 6 6 7 7 and 8 8. It is known as identity relation. इनसे एक्स्ट्रा इसमें कुछ भी नहीं होना चाहिए. ये आप थोड़ा ध्यान देना. नेक्स्ट में जाकर के कहीं कंफ्यूजन ना हो. तो ये हो गया आपका आइडेंटिटी रिलेशन. अब हम लेते हैं इसमें जो क्लास 12 में इस चैप्टर का जो इसमें ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं वो है इक्विवेलेंस रिलेशन. और इक्विवेलेंस रिलेशन पढ़ने के लिए हमें पहले 2-3 टाइप की जो रिलेशन है उसके पार्ट हैं वो हम पहले डिफाइन करते हैं. उसके बाद में इक्विवेलेंस रिलेशन. Number 1, reflexive relation. Reflexive relation. Suppose R is a relation defined on set A to set A, or R is a relation defined on a set A, then it is reflexive if then it is reflexive if A belongs to R for all A belongs to A. आप X कह सकते हैं इसको आप x ले सकते हैं. x बिलोंग्स टू r या a बिलोंग्स टू r फॉर ऑल a बिलोंग्स टू a. यानी हर एलिमेंट खुद से कनेक्टेड है. एवरी एलिमेंट रिलेटेड टू इटसेल्फ, देन इट इज नॉन एज रिफ्लेक्सिव रिलेशन. और इसी टाइप की आपका जो अभी डिफाइन किया था हमने आइडेंटिटी रिलेशन, दोनों में थोड़ा सा फर्क है. पहले मैं आपको ये एग्जांपल लेके बताता हूं. फॉर एग्जांपल, a relation R defined on a set A where A equals to 1 2 3 4 and R equals to 1 1 2 2 3 3 4 4. इस टाइप का रिलेशन. तो R में देखिए 1 1 2 2 3 3 4 4. ये इसमें है there is every element connected to itself, therefore it is reflexive. अब आप ध्यान देना इस पर. ये मैं दोनों कंपेयर कर रहा हूँ साथ में. फर्स्ट इसका लेते हैं आइडेंटिटी रिलेशन और सेकंड हम ले रहे हैं रिफ्लेक्सिव. ये आइडेंटिटी रिलेशन है, यस. रिफ्लेक्सिव है, यस. इसी का एक और एग्जांपल देता हूं आपको. एग्जांपल नंबर 2. सपोज R defined as 1 1 2 2 3 3 4 4 and 1 3. इस तरह का लिया आपने. 1 1 2 2 3 3 4 4 एंड 1 3. अब आप इसमें देखिए ये रिफ्लेक्सिव है. 1 1 2 2 3 3 4 4. दैट इज एवरी एलिमेंट
or all elements of A connected to itself, therefore it is reflexive. Second one, identity relation. Identity relation क्या डिफाइन किया था? All of pair in the type XX, ये दोनों एलिमेंट सेम है, तो इसमें देखिए x का क्या है 1 3, तो इसमें 1 3 है, इट मींस इट इज नॉट आइडेंटिटी रिलेशन. ये आप थोड़ा सा ध्यान देना, इट इज नॉट आइडेंटिटी रिलेशन. नेक्स्ट वन है इसका कम्यूटेटिव, सॉरी सिमेट्रिक. सिमेट्रिक रिलेशन. Let it R is set defined from A to A such that if A B belongs to R, then B A also belongs to R for all A B belongs to R. रिवर्स रिलेशन, यदि A B से रिलेटेड है तो सिमेट्रिक कब होगा? यदि B भी A से रिलेटेड हो तो इसको आप बोलेंगे सिमेट्रिक रिलेशन, देन इट इज सिमेट्रिक. देखिए कोई एक एग्जांपल लीजिए. सपोज R is relation defined on A to A where R equals to A equals to 1 2 3 and R is defined as such that R equals to 1 1 1 2 2 2 2 1 and 3 3. इस टाइप का रिलेशन है. 1 1 इसका रिवर्स भी है, 1 2 2 1, yes it is related to 2 2, yes it is converse 3 3, therefore it is symmetric relation. अब देखिए नेक्स्ट लेते हैं, इसको साथ में हम कंपेयर भी करते जाते हैं. आइदर इट इज रिफ्लेक्सिव, तो 1 2 3 1 1 2 2 3 3, yes it is reflexive also, it is symmetric relation and reflexive also. Third one, transitive relation. Let it R is relation defined on a set A, then if AB belongs to R, that is A related to B and B related to C, then if A related to C, then it is transitive, otherwise not. अब यहां आपको बहुत अच्छे से समझना है, कंफ्यूजन इसी में क्रिएट होता है. If AB belongs to R, BC belongs to R, then we have to check for AC belongs to R, otherwise not. यदि ये दोनों कनेक्टेड है, AB से कनेक्टेड है, BC से कनेक्टेड है, तो हमें जरूरत है A कनेक्टेड टू C, अदरवाइज इसको चेक करने की जरूरत नहीं है. देखिए फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया. नंबर 1, सपोज रिलेशन सेट A इक्वल्स टू 1 2 3 4 and relation are defined as 1 1 2 2 1 3 3 1. इस तरह का रिलेशन लिया आपने, तो 1 1 2 2 1 3 and 3 1. अब इसको आप देखिए, इफ A B रिलेटेड टू R,
कोई भी आप देखो इसमें ये लेते हैं 1 related to 3 and 3 related to 1, then it is eliminated, ये वाला पार्ट। तो आपको क्या चेक करना है 1 related to R, yes, therefore it is transitive, the relation is transitive। बाकी के लिए नहीं देखना आपको, सिर्फ किसके लिए देखना, दो एलिमेंट हैं तब। एक और एग्जांपल देता हूं, देखो आप सेम सेट में, आप ध्यान देना उस पर। सपोज R इक्वल्स टू 1 1 2 2 3 3 एंड 1 3। इस सेट को देखिए आप, आइदर इट इज ट्रांजिटिव और नॉट। पहली बात तो देखो आप ये देख सकते हैं, इसमें आपको ये चेक करना है ए बी एंड बी सी 1 1 एंड 1 3 1 1 एंड 1 3, देन 1 3 बिलोंग्स टू आर, यस, ये खुद ही एलिमेंट है। या फिर आप ऐसे कहें कि ये तो कनेक्टेड टू इटसेल्फ है, इसमें 1 3 बिलोंग्स टू आर, ओनली एक ही एलिमेंट है ए बी बिलोंग्स टू आर, तो आपको नेक्स्ट चेक करने की जरूरत ही नहीं है, आप बिना चेक के कह सकते हैं इट इज ट्रांजिटिव, इट इज ट्रांजिटिव। इस 3 का किसी और से रिलेशन होता तब हम चेक करते हैं, आप इसके लिए कर सकते हैं 3 related to 3, then 1 3 belongs to R, तो ये रिलेशन कैसा है, ट्रांजिटिव। अब मैं आपको 2-3 एग्जांपल देता हूं, जिससे आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। थोड़ी एक्सरसाइज हो जाएगी आपकी से। एग्जांपल 1, सपोज A इक्वल्स टू 6 7 8 and R is relation defined from A to A। अब मैं आपको कुछ रिलेशंस दे रहा हूं, दो भी, लेटिंग R इक्वल्स टू 6 6 7 7 8 8। सेकेंड वन, R equals to 6 6 7 7 8 8 and 6 8। Number 3, R equals to 6 6 6 7 7 6 6 8 and 7 7। इस टाइप के लिए थोड़ा एक एक्सरसाइज हो जाएगी, इसके लिए हम साथ में ले लेते हैं। ये हो गया आपका रिफ्लेक्सिव, ये सिमेट्रिक और ये ट्रांजिटिव। फर्स्ट वन 6 6 7 7 8 8, तो it is reflexive, all elements related to itself, therefore it is reflexive। Is it symmetric? Yes। reverse part 6 6 7 7 8 8, तो ये क्या होगा, symmetric also। and what about transitive? होगा transitive? yes। 6 6 7 7 8 8। अब definition क्या दी थी हमने, A related to B and B related to C, then we have to check A related to C or not। इसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, A related to B but B is not related to any C, therefore we have no need to check A related to C, therefore it is transitive also। यहाँ confusion होगा, देखिए आप थोड़ा सा। नेक्स्ट वन 6 6 7 7 8 8 and 6 8, ये देखिए रिफ्लेक्सिव है, यस। सेकंड वन 6 से ये रिवर्स पार्ट हो जाएगा, 7 7 8 8 6 8 belongs to R but 8 6 not belongs to R, therefore it is not symmetric। and third one again 6 8 belongs to R, 8 8 belongs to R, therefore 6 8 belongs to R,
or we have no need to check for 6 related to any other element, since 6 related to 8 and 8 not related to the different element of A. Therefore, it is transitive also. Number 3, 6 6, 7 7, 6 7, 7 6 and 6 8. But 8 8 is not here. Therefore, it is not a reflexive. Second one, symmetric. 6 7 belongs to R. Then reverse part 7 6 also belongs to R. 6 8 belongs to R, but 8 6 is not there. Therefore, it is not a symmetric. And last one, 6 7 belongs to R. 7 6 belongs to R. Therefore, 6 6 belongs to R. Okay. फिर next है 6 8 belongs to R. बट इसका जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो यहाँ पर नहीं है, तो आप यहाँ पर क्या कहेंगे इसको, ये ट्रांजिटिव है या नहीं है? ट्रांजिटिव है, यस इट इज ट्रांजिटिव. तो आप इनकी ये जो है इनके एग्जांपल्स हैं, इनसे आप थोड़ा सा समझ सकते हैं. थोड़ा सा कंफ्यूजन कहाँ किस में क्रिएट होगा? ट्रांजिटिव में. तो इन तीन के पढ़ने के बाद में आता है हमारा जो टॉपिक जो पढ़ना था, इक्विवेलेंस रिलेशन. If a relation R or a relation R on set A said to be equivalence relation if a number 1 it is reflexive, number 2 it is symmetric, and in number 3 transitive. That is we can say R is a said to be equivalence relation if it is reflexive, that is each element related to itself, symmetric relations, reverse and transitive relation. तीनों रिलेशन यदि इसमें है तो इस रिलेशन को आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे इस रिलेशन को आप? इक्विवेलेंस रिलेशन. एक मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको. फॉर एग्जांपल, सेट x इज इक्वल्स टू a b c and R is defined as a b b c c 1 a c and a c a. इस टाइप का कोई रिलेशन है तो आप कैसे डिफाइन करेंगे? आज डिफाइंड ऑन सेट x टू x. देखो फर्स्ट आप चेक करेंगे it is reflexive or not. A B B or C every element of A related to itself, therefore it is reflexive. Number 2, either it is symmetric or not. Reverse A का reverse again A, B reverse again B and C reverse again C and AC reverse part is CA belongs to R, therefore it is symmetric also. नंबर 3, ट्रांजिटिव. ट्रांजिटिव देखिए आप यहां से चेक कर लीजिए. ए सी बिलोंग्स टू आर, सी बिलोंग्स टू आर, ये पार्ट इसका एलिमिनेट हो जाएगा तो ये क्या आएगा? ए बिलोंग्स टू आर, यस, देयरफॉर इट इज ट्रांजिटिव आल्सो, हेंस इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन. तो ये था आज का हमारा टॉपिक इक्विवेलेंस रिलेशन तक. इसके कुछ बुक के अपने क्वेश्चंस हैं और उनके सॉल्यूशंस हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ आएंगे. तब तक के लिए धन्यवाद.